Good morning, students. I hope all you are fine and well, and your days are going on very well. Student, this is my first video for the Vardhaman Mahavir Open University. You may see this book. This is for BA first year students. Okay, so actually when I was studying in this university, I was wondering to get any video lecture, but those days YouTube was that much not familiar. Okay, but now this day, by the grace of God, I have started to upload it videos. So I hope it will be very interesting for you, and I hope that will be very helpful for you. So I would like to request you, so if yet you are newly watching my video, please subscribe it and share it. Not only that, but those to share your friends and cultures also. Okay, so let's start our first poem. The title of this lesson or this chapter or this poem is Shall I Compare Thee? T-H-E-E Thee. Thee means you. Okay, in Old English, thy, thou, such kind of words are using, but in New English, instead of thee, we can use you. Okay, so this video lecture will be in Hindi and English. Both language will be there, and because especially those who are studying in Open University, and I don't think that they will fully understand of English, so especially in North India or in Rajasthan. I belong to Odisha, but I stayed here in Rajasthan, and at present I am working in Rajasthan. It is my vision and to spread this English language and literature and throughout this state. It is my vision to equip the students, and it is my vision to teach the students, those who are not able to afford their tuition fees or for their coaching, and those who are not getting such videos. Okay, so that is my vision, and I hope that you will cooperate with me. There is no any covetousness or there is no any that tempting for the online classes or something else. That's video. I will never tell you to pay fees for the online classes and nothing else. Freely you watch, and always I will do. I will upload the video only YouTube. So because I want the poor children, those who are from village, and they wanted to gain the English language and literature, and as I can reach to them, and for that purpose I started to upload this video. I started to upload the videos from for Vardhaman Mahavir Open University students. That is my that's my small introduction. So let me read you this poem first of all, and then I will explain you as I told you. And so मैं फिर से आप लोग को ये कहता हूँ कि इस चैनल के द्वारा मैं सिर्फ उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं और जिनके पास कोई कोचिंग सेंटर में जा कर के और पढ़ना, या तो फिर सिटी में आकर के टाइम स्पेंड करना, किसी किराए पे मकान लेकर के रहना, पढ़ना, ये सब संभव नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ही मैं खास करके
और इस वीडियोस को मतलब आगे चल कर के बनाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इंग्लिश लेक्चर का। और हालांकि मैं अदर क्लासेस का जो वीडियो से मेरा CBSE क्लासेस का मैं बना रहा था, पर इन दिनों में मेरे अंदर एक ख्याल आया, विचार आया कि क्यों ना इस माध्यम से मैं गांव-गांव के लोग तक, पूरे राजस्थान के छोर तक मैं पहुंच जाऊं। मैं दिल से इस बात मतलब कहता हूं कि राजस्थान मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं उड़ीसा का निवासी हूं और राजस्थान में आने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। तो इसीलिए मैं एजुकेशन के माध्यम से और मैंने जो पाया है इस स्टेट से और इस स्टेट के लोगों के द्वारा, और मैं इस स्टेट के लोगों को इस तरह से एजुकेशन के द्वारा मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ, मैं आप लोग तक पहुँचना चाहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि मैं पहले बताया था कि ये आई शैल कंपेयर दी का मतलब यू होता है, मतलब तुम्हें, ठीक है ना, तुमको हैं, मैं किससे तुम्हें कंपेयर करूँ, कुल मिला के ये कहा जा सकता है। तो पहले मैं इसका जो ये पोएम को मैं पहले रीड करूँगा। ये एक सनेट है। सनेट का मतलब जहाँ पे हम 14 लाइन वाले जो पोएम होती हैं उसी को सनेट कहा जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। अब मैं कभी और एक वीडियो में विलियम शेक्सपियर का जो पूरा जीवन चरित्र है उसके ऊपर एक लेक्चर ज़रूर मैं बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको धीरज रहना ज़रूरी है। अगर पहली बार आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो कृपया करके आप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी उसको शेयर करें। ओके, सो लेट मी रीड फॉर यू द पोएम और द sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling bud of May, and the summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair sometimes decline by chance or nature changing course untimed, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death bog thou wanderest in his set, when in eternal line to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this give life to thee. तो ये पोएम खास करके अपने दोस्त को डेडिकेट करते हुए विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उसका सुंदरता को वो तुलना करते हैं। प्रकृति में बहुत से चीज़ है जो एक एक समय आता है, मुरझ जाता है, नष्ट हो जाता है। बहुत सारे सुंदर चीज़ जो है कई प्रकृति के बदलाव के कारण, समय के बदलाव के कारण नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो उनका दोस्त, विलियम शेक्सपियर का जो दोस्त है, ना उसका मतलब सुंदरता, ना उसका जो आत्मिकता, ना उसका जो इंटेलिजेंस, ये कभी भी क्या नहीं होगा, ये कभी भी ना मुरझेगा, ना कभी भी ये किसी भी तरह से नष्ट होगा। वो यही कहना चाहते हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 9 को आप देख सकते हैं, और मेरे पास जो बुक है उस पर पेज नंबर 9 है। अगर आपके पास और कोई डिफरेंट बुक है इसी यूनिवर्सिटी का तो उसमें और भी कुछ पेजेस हो सकता है, तो
कृपया करके आप जब लेक्चर को सुनते हैं तो बुक जरूर खोल करके रखें और लेक्चर को सुनते रहे। तो आइए हम उसका समरी को देखते हैं। द पोएट डज नॉट फील inclined to compare his friend's beauty to the beauty of the day of summer season। यहाँ पे पोइट अपना जो दोस्त का ब्यूटीनेस को वो समर सीजन के साथ तुलना करना नहीं चाहते हैं। समर सीजन यानी गर्मियों का जब मौसम है उसके साथ तुलना करना नहीं चाहते हैं। He believes that his friend is more mild, calm and beautiful than the beauty of acquired by the day of summer। वो यही कहते हैं कि उनका जो दोस्त है वो मतलब उनका जो दोस्त है और ये विश्वास करते हैं समर का जो ब्यूटी है वो समर का ब्यूटी से भी वो और भी सुंदर है और साथ ही साथ नरम है और साथ ही साथ काम यानी स्थिर है। The beauty which we witness in a summer's day is very short-lived। हम समर का जो ब्यूटी को देखें तो ये बहुत क्षण भंगुर रहता है यानी क्षण स्थायी रहता है। समर में क्या है सारे पत्ते वगैरह जो है वो सूख जाते हैं, घास वगैरह सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी झरना वगैरह सब सूख जाता है। तो इसीलिए समर का जो ब्यूटी है ये एवरलास्टिंग नहीं हो पाता है। द गुड एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर शेकन अवे एंड ब्रोकन डाउन बाय वाइल्ड विंड्स, हैंस देयर ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। वो यहाँ पे कहते हैं समर सीजन के टाइम पे जो पेड़ों का पत्ता होता है ना, जो पेड़ों का जो पेड़ होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं कि जो वाइल्ड विंड आता है यानी एक तेज हवा जब आता है तब क्या हो जाता है कि ये सभी गिर जाता है, तब ये सब नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं भला कैसे मेरे दोस्त को इन सभी के साथ तुलना करता। ड्यूरिंग समर द सन इज समटाइम वेरी हॉट एंड डाइजल्स वेरी ब्राइटली। समर के समय पर सूरज जो है कभी कभी बहुत भयंकर रूप से क्या करती है और शाइनिंग करती है, बहुत भयंकर रूप से और गर्माहट पैदा करती है। बट समटाइम्स व्हेन its rays are covered by clouds its shine becomes dim। लेकिन कभी कभी सूरज का जो साइंस है वो क्लाउड के द्वारा क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। और जैसे सूरज का जो किरण जो है क्लाउड के द्वारा हाइड हो जाता है तो जाहिर सी बात ये है कि उसका जो चमक है वो डिम हो जाता है यानी मुरझ जाता है। Every beautiful thing in this world would lose its beauty and charm either suddenly or is due to course of time। इस प्रकृति में जितने भी सुंदरता को हम देखते हैं ये सारे सुंदरता क्या हो सकता है कि समय के साथ साथ और रुते बदलने के साथ साथ ये क्या हो जाती है कि नष्ट हो जाती है ना, ये सभी नष्ट हो जाती है। बट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड इज इटरनल एंड दोस विल नेवर बिकम लेस। लेकिन उसका दोस्त का जो सुंदरता है वो कभी भी मुरझेगा नहीं और वो कभी भी लेस नहीं होगा, कम नहीं होगा। इट इज इमोर्टल, इट विल नेदर फेड नॉर डिसलाइक। ये तो एक इमोर्टल है यानी अक्षय है, ये ना कभी मुरझेगा ना कभी क्या हो जाएगा, मतलब ना कभी मुरझेगा ना कभी कम हो जाएगा। द पोएट इज कॉन्फिडेंट दैट हिज फ्रेंड्स ब्यूटी वुड नॉट बी टेकन अवे इवन आफ्टर डेथ। फ्रेंड का जो ब्यूटी है वो कभी भी नहीं दूर होगा इवन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी उसका सुंदरता का कोई अंत नहीं होगा, उसका सुंदरता का कोई नष्ट नहीं होगा।
इट इज़ इटरनल एंड परमानेंट, ये तो अनंत और हमेशा के लिए बना रहने योग्य है। इट वुड इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे दिन बढ़ता जाएगा और ये जो मतलब इसका जो सुंदरता है, उनके दोस्त का जो सुंदरता है, ये क्या होता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा। ही सेज दैट ही हैज इमोर्टलाइज्ड his friend's beauty through this sonnet, and as long as this sonnet would be read by people, his friend's beauty would remain alive। फिर वो कहते जब तक लोग है ना इस सनेट को पढ़ते रहेंगे, यानी इस पोएम को पढ़ते रहेंगे, तब तक लोग क्या करते रहेंगे, उसका उस ब्यूटीनेस को याद करते रहेंगे, है ना। जब तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे तब तक विलियम शेक्सपियर का जो फ्रेंड है वो हमेशा अमर होते रहेंगे, अमर होते जाएंगे, लोगों के द्वारा उसका सुंदरता का जो गुण बखानते जाएंगे, बोलते जाएंगे। तो ये था उसका समरी। अब हम उसका क्रिटिकल एनालाइज को देखते हैं। तो खास करके यूनिवर्सिटी जो बुक को बनाया है बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से बनाया है, बस थोड़ा समझना ही है। एक स्टूडेंट इंडिविजुअली पढ़ के कैसे समझ सकता है, उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने अपना बुक का स्ट्रक्चर को बनाया है। और मैं भी किसी समय इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके ही मतलब BA MA ये सब मैंने पास किया है। एनीवे, सो क्रिटिकल एनालिसिस। So let us look about the critical analysis, है ना। So Shakespeare wrote almost 154 sonnets। टोटल जो सोनेट उन्होंने लिखा है ये लगभग तो नहीं 154 लिखा था। द फर्स्ट 126 आर addressed to his friend WH, और उसमें से जो 126 पोएम है ये सभी को उन्होंने अपनी दोस्त के प्रति इशारा करते हुए, उनके एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा है। और while the other 26 sonnets are conventional exercise in verse, और लेकिन दूसरे जो 26 हैं ये कन्वेंशनल एक्सरसाइज इन वर्स के थ्रू लिखा गया है। द प्रेजेंट सनेट इज नंबर 66। ये जो सनेट अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये 66 नंबर का सनेट है। द पोएट पॉइंट्स आउट दैट एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन नेचर इज श्योर टू डिक्लाइन आइदर अब्रुप्टली और इन ड्यू कोर्स ऑफ नेचर्स टाइम। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जितने भी सुंदर चीज़ है वो सब क्या होगा कि एक समय आएगा, समय के साथ साथ वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका सुंदरता खो जाएगा। लेकिन बट द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड WH इज इटर्नल as it cannot be diminished by the passing of time like other object। लेकिन उसका दोस्त का जो सुंदरता, उसका दोस्त का तो इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या नहीं होगा कि समय के साथ साथ ये मुरझेगा नहीं और समय के साथ साथ ये नष्ट भी नहीं होगा। जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट नष्ट हो जाते हैं वैसे इनका नहीं होगा। On the other hand, will grow permanent because it has been immortalized through this sonnet। और दूसरी तरफ कहा जाएगा तो ये मुरझेगा तो नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाएगा ना। इस सोनेट को जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उसका ब्यूटी उतनी ही आगे बढ़ता रहेगा। So long as this written lecture remains and a poet read this poem, the beauty of his friend will survive unlike other object of beauty। जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट अपना ब्यूटी को खो दिया वैसे उनका फ्रेंड का जो चरित्र, उनका फ्रेंड का जो ब्यूटीनेस है ये खोएगा नहीं जब तक लोग इस पोएम को पढ़ते रहेंगे, जब तक
लोग इस पोएम को पढ़ते रहेंगे। द सनेट इज एड्रेस टू W.H. This young man may have been Henry Warrior Thessley or Earl of Southampton or Sir Philip Sidney's nephew William Howard और थर्ड एर्ल ऑफ पम्बर्ग। तो यहाँ पे WH कौन हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा वहाँ पे लगाया गया है। जो 3 नेम पढ़ा हूँ मैं, शायद ये 3 नेम में से कोई हो सकता है। आइए अभी हम देखेंगे। लेट अस लुक अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम। ओके, हम अभी उसका पोएम का थीम को देखेंगे। The theme of this poem, as of the other 153 addressed to WH, is the permanence and the supremacy of love। ये जो 153 पोएम जैसे अपने दोस्त के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है, ये सारे के सारे क्या है कि सुपरमेसी ऑफ लव, प्रेम का एक अति महत्वपूर्ण और एक भावना को यहाँ पर दर्शाया जाता है। दिस इज रिकरिंग थीम इन अदर सनेट ऑफ शेक्सपियर। और शेक्सपियर का जो जितने अदर सनेट है वो सभी के सभी उसी एक व्यक्ति को डेडिकेट किया जाता है। द पोएट गिव्स एन अश्योरेंस ऑफ पोएटिक इमोर्टैलिटी। यहाँ पे और पोएट जो है और विलियम शेक्सपियर जो है पोइटिकल इमोर्टैलिटी को ऊपर जोर देते, यानी ये कभी अक्षय नहीं होगा, ठीक है ना, अक्षय होकर के रहेगा, अमर होकर के रहेगा। लव एंड फ्रेंडशिप, क्या चीज़, प्रेम और दोस्ती, किसका, उसका अपनी दोस्त के साथ, यानी विलियम शेक्सपियर का अपना दोस्त के साथ। सो लॉन्ग as the written world remain and this poem is read in future। और जब भविष्य में जब कभी भी कोई इस पोएम को पढ़ेंगे तो उसी के तहत और उनके दोस्त विलियम शेक्सपियर के दोस्त के बारे में जरूर वो जान पाएंगे। द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड एज द पोएट्स लव फॉर हिज फ्रेंड वुड रिमेन अलाइव इन द हार्ट, आइज एंड माइंड फॉर द रीडर्स। और इसके द्वारा ये जान पाएंगे कि पोएट अपना दोस्त को कितना प्रेम करता था, और पोएट का और WH का ये दोनों का दोस्ती कितना गहरा था, और साथ ही साथ उसका दोस्त जो है कितना सुंदर भी था। आइज एंड माइंड ऑफ द रीडर, और ये रीडर का जो आइज एंड माइंड को ये क्या कर लेगा, पूर्ण रूप से मतलब उसी के द्वारा लोग जान पाएंगे। इट प्रूव्स द पावर ऑफ रिटन वर्ड विच वुड प्रूव माइटर देन द लॉ ऑफ नेचर। तो ये क्या प्रूव करता है, इट प्रूव्स द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, ये रिटन वर्ड्स का जो पावर को प्रूव करता है, विच वुड प्रूव माइटर देन द लॉ ऑफ नेचर, जो कि नेचर का प्रकृति से भी बढ़कर है, नेचर के नियम से भी बढ़कर है। तो इसका स्टाइल कैसा है, वो स्टाइल ऐसा है। दिस सनेट, अभी स्टाइल देखें 1.4.7। द सनेट हैज़ बीन composed in the foremost English sonnet popularly known as Shakespearean sonnet। ये जो सनेट को विशेष रूप से कंपोस्ट किया गया है, ये इंग्लिश सनेट है, पॉपुलरली इसको शेक्सपियरियन सनेट के रूप में जाना जाता है। इट हैज़ 3 क्वार्टियंस ऑफ 4 लाइन इच, इनके 3 क्वार्टर है और सभी का सभी 4 लाइन का है। एंड 2 लाइन कॉपलेट एट द एंड, और आखिरी में 2 लाइन का एक कॉपलेट वहाँ पर है। देखो ये कॉपलेट क्या है, हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, मतलब ये सभी चीज़ें जो है हम और एक बार पोएटिक डिवाइस जब हम पढ़ेंगे तब हम इन सभी चीज़ों को और भली भांति समझ पाएंगे।
and the two lines couplet in the end. The two characteristics of Shakespeare stands out. दो प्रकार के कैरेक्टर को शेक्सपियर यहाँ पे दर्शाते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज cantobitic. That refers to the work someone whose ear is unring. तो यहाँ पे एक विषय को वो दिखाते हैं, ये रेफर करते हैं कि someone who ear unhearing. He is intent upon making his verse and melodies in the simplest and most obvious sense of the word as possible, and there is scarcely a line which is out of rhyme or tune. तो वो इस तरह से अपने जो राइटिंग को इस तरह से व्यवस्थित ढंग से उन्होंने बनाया है और अपनी पोएम को इस तरह से उन्होंने सजाया है कि ये राइमिंग स्कीम जो है ना बहुत अच्छी तरह से मैचिंग करती है और कोई भी ऐसा नहीं है कि राइम से अलग हो, या जो टोन है वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बना रखा है. ये था फर्स्ट कैरेक्टर. द सेकेंड कैरेक्टर दैट दिस sonnet displays is a mystery of every possible हेटेरोटिकल डिवाइस. तो सभी जो हेटेरोटिकल डिवाइस का जो रहस्य बात है उसको भी यहाँ पे बताया गया है. इट अवॉइड द मोनोटोनी ऑन द होल ऑफ द स्टाइल, very wholesome and powerful. It catches the attention of the reader and make him believe to be true and whatever he reads. यह पोएम को पढ़ते पढ़ते जो रीडर इतना मशगूल हो जाता है, इस पोएम के साथ ही इतना मिल जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि उसको लगता है वो जो पढ़ रहा है वास्तव में वो सच है, सच के सिवा कोई झूठ नहीं है. तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने कोशिश किया है इसको और थोड़ा करने के लिए, ट्राई किया हूँ आपको समझाने के लिए. तो आगे के दिनों में मैं और भी बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा. जैसे कि मैं पहले कहा यह पहला वीडियो है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी भी तरह से कोई कमी हो गई. फिर भी यदि कोई कमी आपको नज़र आता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स है उसमें लिख करके आप बता सकते हैं, और मेरे से और किस प्रकार का सहायता को उम्मीद आप करते हैं ये भी आप बता सकते हैं. मेरे से जितना हो पाएगा मैं अब आपके लिए करूँगा. पर रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे वर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो बच्चों के तक ये वीडियो पहुँचाए. आगे के समय पर MA इंग्लिश लिटरेचर का भी जो सारे कुछ वीडियोस है उसको भी बनाने के लिए मैं सोचता हूँ. जो भी करूँगा इसी के स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी यूनिवर्सिटी का जो बुक है उसी के स्ट्रक्चर के आधार पर ही करूँगा. मेरी मनगढ़ंत है, या तो फिर किसी दूसरा यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, या तो फिर कोई दूसरा राइटर का जो लेख है उसके आधार पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के आधार पर ही मैं ट्रांसलेशन करूँगा, व्याख्या भी करूँगा. थैंक यू. may God bless you. Have a good day.